Hello and welcome to the Miles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 11 November 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about the rural Indian economy के बारे में. So this is basically based on an article which came in the Financial Express, which is named as the Fostering Rural India's Growth. तो ये article is basically about किस तरीके से हम जो rural economy है of India, किस तरीके से हम इसे enhance कर सकते हैं, and with the help of the rural economy, how we can enhance the overall economy of India. Okay, so this basically talks about the issues which are related to the rural India and major developmental roadblocks, which basically acts like a challenge in the development or the progress of the रूरल इंडिया में. ठीक है. सो आपको शायद एक चीज़ पता होना चाहिए जो हमें गवर्नमेंट इंडिया का एक इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटीज़ के बारे में, राइट. सो यू शुड नो दैट पासीघाट या ईस्ट सियांग इज ऑल्सो अ स्मार्ट सिटी ओनली. तो यहाँ पे देखिए कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है कि स्मार्ट सिटीज़ इन इंडिया जो है इट कैनॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेस. तो इसी विलेजेस के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम विलेजेस को हम डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट कैन बी ब्रॉट अबाउट एट दी ग्रास रूट लेवल सो दैट द स्मार्ट सिटीज़ का जो प्रोजेक्ट है एंड ओवरऑल इंडिया का जो इकोनॉमी है इसे भी इनहेंस किया जा सके. दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स, देन फ्रॉम मेंस इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू रूरल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम जीएस पेपर इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू. दैट्स बीन टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्सप्रेस. So you should know that India is predominantly a rural country. ठीक है, because it is only because the population है वो rural areas में ही पाया जाता है. And starting from the Vedic age अगर आप देखोगे जो economy है it is mostly rural in nature. ठीक है, so with 2/3 population जो है and 70% working जो workforce है it resides in the rural areas only. So the rural economy constitutes 46% of the national income. So you understand it's a major chunk of the Indian economy. ठीक है, so thus growth and development of the rural economy and population are a key to overall growth and inclusive development of the country. तो देखिए growth and development हम यहाँ पे we can ensure when the numbers are more, when the GDP is more, but that does not include or that does not basically ensure that every population is being benefited from the growth or the development. है कि नहीं. तो basically कहा जाता है कि जो development है it should be inclusive in nature. ठीक है, so the inclusive part or the inclusive dimension of the development can only take place when we take account the interest of the rural population as well. So contrary to the common perception about predominance of agriculture in the rural economy, about 2/3 of the rural income is now generated in non-agricultural activities. So normally हम जब बस्ती के बारे में कहते हैं तो the first thing that comes to our mind is about agriculture. ठीक है, अभी के टाइम में अगर हम देखेंगे जो 2/3 है, ठीक है, जो 2/3 ऑफ द रूरल इनकम जो है इट इज नाउ बेसिकली जनरेटेड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. दैट इज अब यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं लाइक द डेयरी के बारे में, देन लेदर प्रोडक्ट्स के बारे में, टेक्सटाइल्स के बारे में, टूरिज्म के बारे में, देन फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज, देन एमएसएमई. सो दिस बेसिकली आर कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर फ्रॉम द रूरल एरियाज नाउ. However, the impressive growth of the non-agricultural sector in the rural India has not brought significant employment gains or reduction in disparity in the working productivity. तो देखिए even though the rural economy has been able to contribute immensely to the Indian economy, but still अभी भी आप देखोगे जो a large chunk of the population जो है is still unemployed. ठीक है, तो इसीलिए unemployment को tackle करने में, इसे आप basically curb करने में the rural economy is not being able to perform a very good role. So this underlines the need for a new approach to direct the transition of the rural economy. So now if you look at the constitutional provisions which are related to the rural development in India, the first you should know about the DPSP, that is article number 40. Okay, so DPSP are basically welfare policies so which are meant to be followed by the government while formulating laws. Okay, these are basically guiding principles. So article 40 of the constitution which enshrines in one of the DPSP, that is directive principles of state policy, it lays down that the state shall take steps to organize village panchayat and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government. ठीक है, तो आप देखो कि आर्टिकल 40 जो है ना it basically comes under the गांधीयन प्रिंसिपल में आ जाता है. तो गांधीयन प्रिंसिपल आर मोस्टली फोकस, आप देखो कि गांधी जी ने काफी कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन. ठीक है, अब देखिए ये जो 40 है तो 40 इज बेसिकली डीपीएसपी एंड डीपीएसपी यू शुड नो दिस आर ओनली गाइडिंग इन नेचर, दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल और दे आर जस्टिसेबल इन नेचर. बट देन अगेन इसी आर्टिकल 40 को इसे लीगल प्रोविजनल या
कह सकते हो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक अटायर दिया गया था बाय दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1992, ठीक है, जहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है नाउ डे वे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज। तो अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या कोई भी आप मान लीजिए कि कोई भी सेक्टर को whenever you constitutionalize it, तो it is basically the responsibility of the entire part of India of all the authorities to ensure that पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है कि ये इंडिया में ताकि ये आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। दिस वाज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर पीआरआई और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वेयर यू कैन से इट वाज मेंट फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए, फॉर द ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए, एंड इट वाज फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू द 73rd एक्ट ऑफ 1992, एंड दिस वाज मेंट टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल एंड वाज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री, ठीक है। सो 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो नॉर्मली आप देखोगे हमारा जो शेड्यूल है, ठीक है, जो 7th शेड्यूल में वहां पे जो पावर है, जो फंक्शंस है, उसे डिवाइड किया गया है इन द सेंट्रल लिस्ट, इन द स्टेट लिस्ट में आपको मिलेगा यूनियन लिस्ट मिलेगा, देन स्टेट लिस्ट मिलेगा, एंड यू विल आल्सो फाइंड अ कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे 11th शेड्यूल जो है व्हिच बेसिकली डील्स विद द पंचायती राज, व्हिच इज अ न्यू शेड्यूल एडेड बाय दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ओनली। तो इसमें देखिए क्या था, 29 फंक्शन जो है ना, जो कि यूजुअली आप कह सकते हो जो कि नॉर्मली बाय डिफॉल्ट इट बिलोंग्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, सो 29 फंक्शन जो है इट वाज गिवन टू द पंचायती राज नाउ, ठीक है। सो पंचायती राज, तो यहाँ पे जो फंक्शंस है इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, देन लैंड इंप्रूवमेंट, implementation of land reform, etc. So panchayats are empowered to prepare plans for economic development and social justice in respect of subjects that are evolved by the law to the various levels of पंचायत including the subjects as listed in the 11th schedule। तो यहाँ पे जो 29 functions है या जो subject है, तो इसी basis पर आप कह सकते हो the पंचायत has also been the task and the responsibility to conduct elections, और उनका जो भी यहाँ पे members रहेगा, ठीक है, तो the members will also be able to take up various economic activities and also they would be able to take up various developmental progress with respect to these 29 functions, ठीक है, and these are mostly based on agriculture, land improvement, implementation of land from, तो यहां पे उनका से रहता है, राइट। लेकिन इट इज often been observed that the rural जो इकोनॉमी है या rural जो population जो administration है, so it is somewhere they are lacking the progress और आप कह सकते हो जो development which is actually supposed to be, ठीक है। तो यहाँ पे हम issues के बारे में बात करेंगे, हम challenges के बारे में बात करेंगे in the actual development of the rural sphere। So देखिए पहला यहाँ पे बताया गया है about the lack of educational enlightenment। तो पहला चीज आपको बहुत यहाँ पे नॉर्मल सा एक पॉइंट है जहाँ पे आपको पता है कि बस्ती से आप देखोगे जो भी लोग जो पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे जो यूथ है, सो कभी भी आप देखोगे whenever they wish to like pursue some kind of education, तो स्कूल के बाद या कभी भी स्कूल पे भी आप देखोगे स्कूल लेवल पर या उसके हाई लेवल पर या कोचिंग के लिए हो, सो दे मोस्टली दे नीड टू माइग्रेट फ्रॉम द बस्ती इलाकास टू द टाउन इलाकास, है कि नहीं। तो दिस इज द रीजन व्हाई, तो आप देखोगे द रूरल एरियाज दे लैक इन द एजुकेशनल एनलाइटनमेंट। द स्कूल एजुकेशन इन द रूरल इंडिया इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। देयर इज यहाँ पे आप कह सकते हो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, दे आर नॉट basically found in the basti areas, right, in the rural areas। So for rural India the journey of education is not very easy one। Students from the rural schools either have no access or lack of access to advanced learning tools such as the digital learning, computer education and non-academic books। तो ये सब कारण के लिए particular जो भी सारा आप कह सकते हो कि youth है या जो aspirants है, they basically need to visit or they need to migrate to different places in search of better education। So also families from the rural areas are always in a financial burden due to various reasons। तो उनके ऊपर मान लीजिए कि अगर वो agriculture practice करते हैं, तो कभी कभी when they are not awarded, आप कह सकते हैं when they are not in a position to avail the loan from the banks or the various institution, तो उनको लेना पड़ता है लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स, जो भी प्राइवेट मनी लेंडर है, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो भी काफी ज्यादा रहता है। इसी कारण से उनके ऊपर जो रूरल पॉपुलेशन उनके ऊपर हमेशा एक बर्डन रहता है। बर्डन की वजह से यहाँ पे जो उनका चाइल्ड होता है, जो उनका वार्ड होता है, दे आर ऑफन डिप्राइव्ड ऑफ द नेसेसरी एजुकेशन दैट दे आर सपोज्ड टू बी प्रोवाइडेड विद। और इस केस में आप देखोगे अगर बॉय और गर्ल का आप कहोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड है ना, तो गर्ल चाइल्ड का जो एजुकेशन है उसमें उनको डिप्राइव किया जाता है, ठीक है। सो देयर इज आल्सो सेड अबाउट द लैक ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वे ऑफ सक्सेसफुल रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया इज द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज है, जो पब्लिक सर्विसेज है, नाउ इट शुड बी मेड अकाउंटेबल, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बट देन अगेन यहाँ पे जो एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से जो स्कीम्स है या जितने भी सारे डेवलपमेंटल वर्क्स है, दे आर बेसिकली नॉट कंडक्टेड, और आप कह सकते हो कि बहुत टाइम लग जाता
जाता है इन सब में। इन दिस एरियाज करप्शन थ्राइव्स ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस। अब क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनका एजुकेशन कम है, और कभी कभी हो जाता है कि वो जो लोग हैं उनको इतना पॉलिटिकल उनका नॉलेज नहीं होता है, और इसी वजह से क्या होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिसर्स है, जो गवर्नमेंट यहाँ पे सर्वेंट है, दे टेक एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व इन दी मीनिंग्स ऑफ करप्शन। तो करप्शन से क्या हो जाएगा, जो पैसा आ रहा था बस्ती का प्रोग्रेस के लिए, तो वो पैसा चला जाता है कहीं और। ठीक है, उसके बाद बताया गया है अबाउट दी रूरल अर्बन वाटर कन्फ्लिक्ट के बारे में। अब देखिए, मैंने बताया कि एजुकेशन के लिए लोग आते हैं टू दी टाउन इलाका सिटीज में, और अब देखो नॉट जस्ट फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ ऑल्सो, और ऐसे बहुत सारे कारण में फॉर द लाइफ स्टाइल ऑल्सो द पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज दे माइग्रेट टू दी अर्बन एरियाज। तो इसमें क्या हो जाता है, जो अर्बन एरियाज का जो पॉपुलेशन है ना, तो उसमें ये पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो देयर इज बेसिकली पॉपुलेशन बर्डन आ जाता है, और इसी बर्डन के लिए कभी कभी क्या हो जाता है, जो सिविलाइजेशन है या जो टाउन्स है, टाउन्स कभी द टाउन्स बेसिकली दे ग्रो इन साइज, और टाउन्स तो ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली भी ग्रो करता है और वर्टिकली भी ग्रो करता है। वर्टिकली इन द सेंस अभी बिल्डिंग बन जाता है। अब ये जो बिल्डिंग्स है, जो फ्लैट वगैरह बनता है, तो उसमें चाहिए अभी वाटर सप्लाई। अब क्योंकि वाटर सप्लाई इज नॉट सफिशिएंट इन द सिटी एरियाज, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी रिजर्वायर्स है, जो भी लेक्स है बस्ती इलाका में, तो वहां से पानी लिया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो दिस इज बेसिकली पोजिंग अ रिस्क टू दी रूरल एरियाज इन मीटिंग देयर वाटर नीड्स। ठीक है, क्योंकि उनका जो पानी है उसे डाइवर्ट करके सिटी में आप कह सकते हो कि सिटी में इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन्फ्लेशन देखिए हर एक इलाका, हर एक पॉपुलेशन को हिट करता है। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट फॉर द रूरल पॉपुलेशन, लेकिन एक स्टडी यहाँ पे कंडक्ट किया गया है जहां पे ये रिवील किया गया है कि द इन्फ्लेशन से जो इफेक्ट है, जो हिट हुआ है ना, द रूरल पॉपुलेशन इज बेसिकली more hit as compared to the urban population. ठीक है, the inflationary जो pressure in the economy is impacting the rural India more than its urban counterpart. ठीक है, so data from the NSO, that is the National Statistical Office, who is responsible for आप कह सकते हो for basically finding the CPI, that is the consumer price inflation. तो ये जो CPI है, it measures the change in price paid by the consumers for goods and services. ठीक है, तो ये measure करता है कि कितना inflation होता है CPI. तो this CPI has grown at a higher rate in the rural areas as compared to the urban areas. तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे रास्ता नहीं रहता है, रास्ता खराब रहता है, तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में यहाँ पे जो सामान ले जाने में ज्यादा खर्च होता है, तो उसकी वजह से अर्बन सिटीज से आप देखोगे रूरल एरियाज में जो दाम है ना वो ज्यादा रहता है। For instance, the inflation rate for cereals in the rural areas increased to 10.08% during August 2022 compared to 8.65 in urban areas. So urban areas में भी दाम बढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा कम बढ़ा है, and it is only because यहाँ पे ज़्यादा accessible है, ठीक है, यहाँ पे availability ज़्यादा है, but then again because of lack of availability, the prices they increase more in the rural counterpart. एंड फाइनली वी कैन टॉक अबाउट द अनप्लान माइग्रेशन। ठीक है, सो अनप्लान माइग्रेशन अगर आप देखोगे, माइग्रेशन इज क्वाइट नॉर्मल, माइग्रेशन इज अ ट्रुथ। तो माइग्रेशन ऑब्वियसली टेक्स प्लेस फॉर वेरियस पर्पसेस, बट इट इज समटाइम्स इट इज सीन दैट इट इज अनरेगुलेटेड इन नेचर, या अनप्लान्ड हो जाता है, दैट इज फ्रॉम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, पर्टिकुलरली इन सर्च ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब हो गया, इज पुटिंग द सीवियर प्रेशर ऑन अर्बन एमिनिटीज एंड फोर्सिंग अ लार्ज नंबर ऑफ लो वेज माइग्रेंट्स फ्रॉम द रूरल एरियाज टू लिव इन अनहाइजेनिक एंड डिप्राइव्ड कंडीशन। तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे एक्सप्लोजन की वजह से in the urban areas, you will see the people from the rural areas, they are forced or they are basically made to stay in the slums में रहना पड़ता है कि नहीं। तो इससे क्या हो जाता है, जो हाइजीनिक कंडीशंस है तो वो भी इफेक्ट होता है। तो मोस्टली आप देखोगे जब भी कोई भी तरीके का पैंडेमिक वगैरह होता है उनको भी ज़्यादा हिट होता है। फिर इट इज ऑल्सो लीडिंग टू द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो बिकॉज मेल जो पॉपुलेशन है, द मेल पॉपुलेशन ऑफ द बस्ती इलाकाज आर कमिंग टू द टाउन इलाकाज, तो वहाँ पे जो भी फीमेल है तो उनको यहाँ पे एंगेज होना पड़ता है इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर में। ठीक है, एंड देन वी विल फाइंड अबाउट द लैक ऑफ फिस्कल ऑटोनॉमी। अगर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के बारे में, या हम कोई भी अगर हम विलेज लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात करेंगे, इवन दो दे हैव बीन गिवन 29 फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द 11th शेड्यूल, बट स्टिल जो भी फंक्शंस है ना उसमें पैसा बहुत कम आता है। ठीक है, सो पंचायत जो है दे हैव गॉट वेरी लिटिल फिस्कल ऑटोनॉमी, वो अपने तरफ से वो डिसीजन नहीं लेते। ठीक है, डिसीजन देखिए, अब एक बात आप समझिए कि पैसा जो है ना, पैसा जब आता है तभी एक आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन हो गया या जो भी ऑफिस है उनका पावर तो बस तभी आता है।
ठीक है, अगर मान लीजिए कि पैसा ही नहीं आ रहा है तो उस ऑफिस का क्या काम है कि नहीं. सो ग्राम पंचायत हैव वेरी लिमिटेड पावर्स विद रिगार्ड टू सेटिंग टैक्स. वो जो भी सारा टैक्स वगैरह आप देखोगे, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टैक्स लिवाई कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लिवाई कर सकता है, जैसे कि जीएसटी हो गया. लेकिन ग्राम पंचायत के पास जो टैक्सेशन का जो पावर्स है ना वो बहुत कम रहता है. एंड रेवेन्यू बेस में सिंस ब्रॉड पैरामीटर्स फॉर सच एक्सरसाइजेस आर फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो ये जो टैक्सेशन जो रिलेटेड मैटर्स है, दिस आर बेसिकली डेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली. तो इसी कारण से उनके पास जो पैसों का जो ऑटोनॉमी है वो नहीं रहता है. इट रिड्यूसेस द फिस्कल ऑटोनॉमी ऑफ द ग्राम पंचायत एंड अलाउस ओनली फीबल स्कोप फॉर फ्रीडम ऑफ बोरोइंग एंड डेवलपमेंट. बस कुछ ही यहाँ पे एरियाज है जहाँ पे वो काम कर सकते हैं. वेरी लो पार्टिसिपेशन. एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फिस्कल ऑटोनॉमी एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंडिंग. ठीक है, तो इसी कारण से आप देखो कि गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव भी लेते हैं. सो रूरल एम्पावरमेंट के लिए या रूरल जो पॉपुलेशन है रूरल इंडिया के लिए जो भी सारा चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एग्जामिनेशन. यू शुड लर्न अबाउट द वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. जैसे कि हम बात कर सकते हैं अबाउट द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, देन प्रधानमंत्री मतरू वंदना योजना के बारे में, देन अबाउट द मनरेगा के बारे में विच इज बेसिकली एन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है. उसके बाद अबाउट द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना विच इज ग्रामीण. ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, यू शुड नो एवरीथिंग इन डिटेल सो दैट इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड यू गाइस विल बी एबल टू आंसर एफिशिएंटली. तो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक मेंस क्वेश्चन है. प्लीज रीड द क्वेश्चन. आई विल हेल्प यू विद द आंसर इन द नेक्स्ट सेशन. The next article is about earthquake. Earthquake आपको शायद पता ही होगा कि कल भी एक earthquake आया था in the case of अरुणाचल only. Epicenter was somewhere near आलोंग में. ठीक है, तो कहा गया है कि that powerful, और ये जो earthquake है recent times में नेपाल में भी आया है which was basically having a magnitude of 6.6 Richter. ठीक है, तो इसमें 6 people यहाँ पे मर भी गए. ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे which can be important for prelims. मैंने हाल ही में कवर किया था वॉल्केनो के बारे में, बड़ा डिटेल में मैंने समझाया था. अगर आपने नहीं देखा होगा आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो अबाउट द वॉल्केनोस एज वेल. ठीक है, तो वॉल्केनोस अर्थक्वेक जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. फर्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक के बारे में. बट फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज दैट कॉजेज जो है इट इज वेरी रेलिवेंट वन. तो ये जो कॉजेज है दिस आर नॉट जस्ट लिमिटेड फॉर द नेपाल अर्थक्वेक. दिस कॉजेज वुड बी सिमिलर फॉर द अर्थक्वेक ऑकरिंग इन नॉर्थ ईस्ट एज वेल. ठीक है, बिकॉज बोथ नेपाल एंड अरुणाचल यू नो दैट इट लाइज इन द हिमाचल बेल्ट ओनली, सॉरी हिमालयस का बेल्ट ओनली. सो अकॉर्डिंग टू द United States Geological Survey, the tremors are attributed to the continental collisions of India and the Eurasian plate. तो you should know जो अर्थ है ना, अर्थ का जो सरफेस है it has been fragmented into certain major and minor tectonic plates. ठीक है, जो हमेशा मूव करता रहता है. As you can see in this picture, these are some major plates and these are some minor plates which are in the smaller जो मैग्नीट्यूड में है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्लेट्स है ना, जो यूरेशियन प्लेट है आप देख सकते हो, ये जो इंडियन प्लेट है, कभी कभी बताया जाता है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये एक ही प्लेट है, जो इसको साथ में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है. सो व्हाटएवर इट इज, इंडियन प्लेट आप देख सकते हो और यूरेशियन प्लेट जो है ना, दे आर बेसिकली बोथ आर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ओनली एंड दे व्हाट दे डू इज दैट दे आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है और कन्वर्जिंग के कारण ये जो इंडियन प्लेट है ना, इंडियन प्लेट का कहा जाता है कि इसका डेंसिटी ज्यादा है, तो बिकॉज ऑफ इट्स हायर डेंसिटी वो सबडक्ट करता है और ये जो यूरेशियन प्लेट है, दिस यूरेशियन प्लेट ये फ्लोट करता है. ठीक है, तो इसी यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट का जो यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है ना, इसी के कारण कहा जाता है दैट द सेस्मिक एक्टिविटीज डू टेक प्लेस इन द हिमालयन रीजन. ठीक है, now these plates are converging at the relative rate of 40 to 50 millimeters per year. एक साल में इतना यहाँ पे convergence हो रहा है. So not what under thrusting, there is subduction of the Indian plate. तो ये जो plate है ना, ये यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रहा है एंड कंसिक्वेंटली मेक दिस एरिया वन ऑफ द मोस्ट सिस्मिकली हैजर्डस रीजन्स ऑन अर्थ. दुनिया में आप देखोगे इन ऑल द प्लेट बाउंड्रीज दे आर बेसिकली क्वाइट वल्नरेबल टू द अर्थक्वेक एंड द वॉल्केनोस एज वेल. द हिमालयस एंड देयर विसिनिटी हैव विटनेस्ड सम ऑफ द मोस्ट लीथल earthquakes such as the magnitude 8.1 in Bihar, which is also in the Himalayan region only. The 1995 magnitude 7.5 quake यहाँ पे आया था in Kangra region and 2005 magnitude of 7.6 quake आया था in Kashmir के केस में. You should know about this tectonic plates of the world. It's very important because the plate boundaries में आप देखोगे most of the earthquakes do take place.
तो अगर हम बात करेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में, सो अर्थक्वेक इज बेसिकली द शेकिंग और ट्रेमर दैट इज फेल्ट ऑन द अर्थ. इट्स अ नेचुरल इवेंट, बट इट इज नॉट जस्ट नेचुरल इवेंट, इट कैन बी टेकिंग प्लेस मैनुअली ऑल्सो, बाय आर्टिफिशियल इसे भी कर सकते हैं, जैसे कि बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. अगर आप लार्ज डैम बनाते हो ना, तो जो विसिनिटी है उसमें भी अर्थक्वेक आने का चांसेस रहता है, और जहां पे बहुत ज्यादा माइनिंग होता है उसमें भी कोलैप्स अर्थक्वेक आ सकता है. इट इज कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी व्हिच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस. देखिए इसे सेस्मिक वेव्स कहते हैं. द वाइब्रेशंस जो है आर कॉल्ड seismic waves are generated from earthquakes that travel through the earth and are recorded on instruments which are known as seismograph. ठीक है, तो seismograph में आप देखोगे इस तरीके का वेव यहाँ पर रिकॉर्ड होता है. ठीक है, जहाँ पे बताया जाता है about various kind of seismic waves के बारे में. फॉर एग्जाम्पल P waves, S wave जो कि बॉडी वेव्स है, एंड सरफेस वेव्स भी पाया जाता है on the seismographs reading only. The location below the earth's surface where the earthquake start is called as hypocenter. तो जहाँ पे फॉल्टिंग हो रहा है या जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, जिस पॉइंट से अंदर सर्फेस के अंदर में जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, उसी को कहा जाता है हाइपोसेंटर. हाइपोसेंटर को फोकस भी कहा जाता है. ठीक है, और यही फोकस का जो एग्जैक्टली ऊपर में जो पॉइंट है ना सरफेस में, उसे कहा जाता है एपिसेंटर. तो कल का जो अरुणाचल में अर्थक्वेक आया था उसका एपिसेंटर इट वाज समवेयर इन वेस्ट सियांग, आई थिंक इट वाज समवेयर नियर आलो. ठीक है, तो देयर आर आल्सो सम टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक. फॉल्ट जोन्स है, फॉल्ट जोन जो कि अलोंग द फॉल्ट होता है. टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो कि प्लेट बाउंड्रीज में होता है. देन वोल्केनिक अर्थक्वेक जो वोल्केनो के टाइम में हो सकता है, वोल्केनो आने के बाद या ड्यूरिंग द रिलीज, और वोल्केनो से पहले भी हो सकता है. एंड ह्यूमन induced earthquake, as I told you about the examples of the dam construction and also about the collapse earthquake because of the extensive mining by human. The earthquake events are scaled either through the magnitude or the intensity. अब ये जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड को हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल से. ठीक है, तो कल का जो था अर्थक्वेक इट वाज अराउंड 5.7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये रिक्टर है. ठीक है, अब ये जो रिक्टर है, रिक्टर स्केल का जो आप देखोगे रेंज है इट इज 0 to 10, और इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी इज बेसिकली अबाउट डिस्ट्रक्शन, कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना डैमेज हुआ है. ठीक है, इट इज अबाउट विजिबल डैमेज के बारे में. इंटेंसिटी जो इट इज मेजर्ड इन मर्सली स्केल, तो मर्सली स्केल का रेंज है 1 से लेके 12 तक. ये दोनों ही वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा अबाउट द रिक्टर स्केल, अबाउट द मर्सली स्केल के बारे में. एंड देन फाइनली वी कैन सी अबाउट द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक के बारे में. तो ये अर्थ में आप देखोगे 3 आपको जगह मिलेगा विच आर मोस्ट फेमस, विच आर मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर द अर्थक्वेक के लिए. एंड दिस आर द सेम एरिया जहां पे वोल्केनोस भी होता है. ठीक है, तो वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक ये एक दूसरे के साथ काफी रिलेटेड है, दे आर लाइक भाई भाई. ऑलराइट, सो आप देखिए सर्कम पैसिफिक यहाँ पे बेल्ट है विच इज अकॉर्ड विच जो रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, है कि नहीं. उसके बाद आप देखिए दिस अनदर बेल्ट दैट इज मिड अटलांटिक रिज. तो मिड अटलांटिक रिज में भी वोल्केनोस भी होता है. ठीक है, और इसी एरिया में अर्थक्वेक भी आपको दिखेगा. मिड मतलब अटलांटिक ओशन के बीच में ना, अटलांटिक ओशन के नीचे आपको एक यहाँ पे रिज मिलेगा. ठीक है, कंटिन्यूअस रिज है. और यहाँ पे फाइनली एल्पाइन हिमालयन बेल्ट. एल्पाइन हिमालयन विच बेसिकली इज फाउंड इन यूरोप, देन एशिया एंड हिमालय रीजन से आप देखिए कि ये एक्सटेंड हो रहा है टिल इंडोनेशिया, सुमात्रा, बाली तक भी ये पाया जाता है. सो दिस आर द बेल्ट जहां पे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक हैज बीन टेकन प्लेस. तो अगर हम बात करेंगे तो पहला आ जाता है सर्कम पैसिफिक विच इज नोन एज द रिंग ऑफ फायर. रिंग ऑफ फायर में इफ यू सी 81% ऑफ द एंटायर अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड टेक्स प्लेस इन द रिंग ऑफ फायर ओनली. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बेल्ट है, जो यहाँ पे टेक्टोनिक पैसिफिक ओशन बेल्ट, तो पैसिफिक ओशन का जो ये टेक्टोनिक प्लेट है इट इज बेसिकली सबडक्टिंग बीनीथ, यू कैन से. अब देखिए ओशन प्लेट जो है ना उसका डेंसिटी ज्यादा रहता है, तो ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट करता है, साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट करता है, एंड ऑल्सो सबडक्ट्स बीनीथ द यूरेशियन प्लेट के अंदर भी. तो इसी कारण से आपको यहाँ पे बहुत सारा अर्थक्वेक दिखेगा. इसी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, जहां पे बहुत सारा यहाँ पे अर्थक्वेक प्लस वोल्केनोस पाया जाता है. ठीक है, देन अबाउट द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो कि मैंने बताया अबाउट हिमालय और एल्पाइन के बारे में. सो इट बेसिकली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जावा, सुमात्रा, ये एशिया से होते हुए थ्रू द हिमालयस में मिलेगा, उसके बाद मेडिटेरेनियन एंड आउट टू द अटलांटिक में एंड होता है. सो दिस बेल्ट accounts for about 17% of the world's largest earthquake, including some of the most destructive ones. And finally about the mid-Atlantic ridge, जो कि Atlantic Ocean में नीचे पाया जाता है, इसे mid-oceanic ridge भी कहा जाता है. The third prominent belt follows from the submerged mid-Atlantic ridge. The ridge basically marks where two tectonic plates यहाँ पे spreading apart. तो ये जो plates है ना, North American plate और Eurasian plate, they're basically आप कह सकते हो कि वो एक दूसरे से वो दूर जा रहा है. तो क्योंकि divergence is taking place, यहाँ पे एक लंबा सा fault बना है और इसी fault में volcanic eruptions भी होते हैं प्लस earthquake भी होता है. So this is a divergent plate boundary, then most of the mid-Atlantic ridge is deep underwater and far from the human development. अगर हम अर्थक्वेक का इंडिया के बारे में बात करेंगे, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इज अबाउट दी जोनेशन के बारे में, अबाउट दी हैजर्ड मैपिंग के बारे में. तो इसे कहा जाता है सेस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया कहा जाता है. दिस हैज बीन आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम, क्लियरली याद कर लीजिएगा. ठीक है, तो ये जो लाल लाल जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज जोन 5 जहां पे हाईएस्ट इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है. उसके बाद ये जो आपको ऑरेंज में दिख रहा है, दिस इज अबाउट दी जोन 4 जहां पे लेस
आप कह सकते हो कि लेस फ्रीक्वेंट और लेस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है, उसके बाद येलो आ जाता है जोन 3, तो एंड फाइनली जोन 2 में आप कह सकते हो कि ब्लू पोर्शन आ जाता है। जोन 1 यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बिकॉज जोन 1 में देयर वुड बी नो अर्थक्वेक, और इंडिया में ऐसा कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे अर्थक्वेक लाइक इट इज कंप्लीटली टेक्टोनिकली सेफ, जहाँ पे अर्थक्वेक होगा नहीं, तो इसीलिए वी स्टार्ट फ्रॉम जोन 2 ओनली। और जोन 5 अब देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है ना वो जोन 5 में ले करता है, वो लाई करता है, दिस इज द रीजन व्हाई हिमालयस है, तो इसीलिए बहुत सारा अर्थक्वेक यहाँ पे ऑकर करता है। सो इंडिया इज वन ऑफ द हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्री बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द टेक्निकली एक्टिव यंग फोल माउंटेन्स इन हिमालयस। हिमालयस आर स्टिल इमर्जिंग। हिमालयस यहाँ पे आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द यूरेशियन प्लेट एंड द इंडियन प्लेट, यहाँ पे द हिमालयस आर बीन फॉर्म्ड एज अ फोल्डिंग माउंटेन्स, इसी कारण से बहुत सारा यहाँ पे अर्थक्वेक मिलेगा आपको। तो इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 seismic zones as you can look at this map, and यहाँ पे based on scientific inputs relating to the seismicity earthquake that occurred in the past, तो यहाँ पे responsible कौन है in this donation in the mapping? The BIS, जिसे कहा जाता है Bureau of Indian Standard, the official agency for publishing the seismic hazard map and codes। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक और प्रीलिम्स क्वेश्चन है, प्लीज यहाँ पर रिप्लाई कीजिएगा इन कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश व्हिच इज अबाउट द आवाज, एंड कहा गया है कि इट इज द टॉर्च बियरर ऑफ द आपातानी वुमेन। आवाज स्टैंड्स फॉर आपातानी वुमेन एसोसिएशन ऑफ जीरो। इसी के बारे में हम बात करेंगे। इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर, सोसाइटी और रोल ऑफ वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स। तो देखिए कहा गया है कि द आपातानी वुमेन एसोसिएशन ऑफ जीरो आवाज कहा जाता है। देखिए इट इज द टॉर्च बियरर ऑफ आपातानी वुमेन एंड रेंडरिंग वुमेन सर्विस, ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन का मीनिंग होता है एफिशिएंट और यूजफुल हेल्प इन नीड फॉर द कॉज ऑफ आपातानी वुमेन नॉट ओनली इन जीरो प्लेट्यू बट द होल स्टेट वाज ओपाइंड बाय लोअर सुबनसिरी। ऐसा कहा है लोअर सुबनसिरी के डीसी बामिन निमे ने। ठीक है, तो बेसिकली ये बामिन निमो स्पीकिंग एट द 7th एनिवर्सरी। सो एज यू कैन सी दिस केक कटिंग सेरेमनी इज टेकिंग प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ द 7th एनिवर्सरी ऑफ द आवाज। ठीक है, द आवाज is the apex body of Apatani women with approximately 5,000 members across the state। यहाँ पे बस Apatani नहीं, यहाँ पे और भी आपको different tribes के women मिलेगा। The Awaz acts as a backbone of the Apatani women who were instrumental in facilitating the women folk to walk shoulder to shoulder with men। ठीक है, this is all about women empowerment। ठीक है, this is all about आप कह सकते हो कि enhancing the role of women in the society। ठीक है, and you should know about the name of the Awaz president, that is Hibu Yapa, and General Secretary Ligang Ania appeal to the Apatani women across the state to support and cooperate in taking Awaz to greater heights and glory। So the DC जिन्हें urge किया है, they urge the Awaz members to raise voice against the any atrocity committed against women, not just in zero, ठीक है, but also outside zero। ठीक है, तो this particular यहाँ पे कहा गया ये जो organization है तो not to be region specific but to act for the welfare of the women across the state। The next article is about the Diamond Jubilee celebrations of the Battle of Wolong। तो मैंने ये पहले भी कवर किया हुआ है, तो इसी के बाद बिकॉज इट इज वापस से इन द न्यूज, वापस से हम बात करेंगे थोड़ा। ठीक है, सो ये जो Diamond Jubilee has been done to commemorate the unsurpassable bravery and sacrifice of the Indian Army। तो this can be important for GS paper 1 post independence Indian history because Battle of Wolong जो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, it has been taken from the echo of Arunachal। तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एक यहाँ पे वालोंग मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। सो एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द बैटल ऑफ वालोंग टू कमेमोरेट द अनसरपेसेबल bravery and sacrifice of the Indian army while defending the Indian territory against the Chinese aggression of 1962। तो देखिए 1962 के टाइम में हुआ था इंडो चाइनीज वॉर, और इसी वॉर में बिकॉज द इंडियन आर्मी आर क्वाइट, आप कह सकते हो कि दे आर क्वाइट करेजियस इन नेचर, सो आउट ऑफ देयर करेज ओनली दे वर बेसिकली ट्राइंग टू डिफेंड देयर ओन सॉइल, देयर ओन लैंड। So this was the reason how the Battle of Wolong took place in the year 1962 during the Chinese aggression। ठीक है, अब यहाँ पे the Indian army का जो Dao division है of the spear crops, now they are organizing a मेला at Wolong Circle, जिसे Wolong मेला कहा गया, of Arunachal Pradesh on Wednesday, incorporating the local populace। The aim of the Wolong मेला was to familiarize the public with the Indian army। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि how the Indian army had played a really significant role in basically in defending or the sovereignty of India, and to instill in the civilians a sense of belongingness, togetherness, and also nationalism and patriotism as well। The मेला conducted at Wolong encompassed a variety of scintillating sports and game events भी यहाँ पे हुआ था। अब हम अगर यहाँ पे बात करें about the Battle of Wolong के बारे में, as I told you, it took place in the year 1962, that is 60 years ago। The Indian Army gave a bloody nose to the Chinese in the Battle of Wolong। The Indian Army launched its only counterattack during the war to stall the advancing PLA soldiers। PLA that is आप कह सकते हो the People's Liberation Army of the China। तो ये जब advancing आ रहे थे तो उनको रोकने के लिए there was a battle that took place। The brave heart of Indian Army, it held back the Chinese troops for 27 days तक, which forced the Chinese to deploy its reverse division from China
चाइना फ्रॉम तवांग टू वालोंग. तो तवांग में जो उनका रिजर्व फोर्स थे उनको ताकि डिफेंस के लिए आ पाए तो दे वर बीन शिफ्टेड टू वालोंग, आउटनंबर्ड एंड विद लिटिल एम्यूनिशन बिकॉज द इंडियन आर्मी वर क्वाइट लेस इन numbers compared to the PLA, and they had very less ammunition, no resource of any kind. Valiant Joe troops had continued to hold their ground in a classic example of fighting till last man on the last arm. This saga of valor and sacrifice serves as a tale of inspiration for generations to come. All right, this will be obviously, or not just for Arunachal, for entire India, it will be set as an example of the contributions made by the Indian Army. The celebration will culminate on 17th of November in Walong, during which a large number of war veterans, their relatives, and the locals of the area will be honored. देखिए, तो 17th of November में this will be finally ending. और इसी टॉपिक के बेसिस पर एक पुलिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ये सारा क्वेश्चन मैं आपको पूछा था लास्ट वीडियो में. लेट्स लुक एट द आंसर्स. So the answers are the legal services day you should know is observed on 9th of November, and the Horongi या जो दोनीपोलो एयरपोर्ट है, the first flight will be flying, the first Indigo flight will fly between Horongi and Kolkata. So for now that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.